اور دے جا خرچ سے بچیے، پیسوں کو بچائیے. بہت ڈیپ میں نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ پیسوں کو بچائیے. میں بار بار بول رہا ہوں اگر اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے نا تو آپ پیسوں کو بچائیے اور تعلیم میں خرچ کیجیے، ایجوکیشن میں خرچ کیجیے. جہاں بھی تعلیم کے ادارے ہیں اس ادارے کو پروان چڑھا دیجیے. آج مسلمان تعلیمی ادارے میں پیسہ خرچ کرنے بہت پیچھے ہے. مسلمان کہاں بنائے گا؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے طالب علم بنا دے گا، تعلیمی ادارہ نہیں کھولے گا. اسرائیل نے تعلیمی ادارہ کھولا. میرے دوست ساری دنیا پر دل واسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل حکمرانی کر رہا ہے. ڈیو ایجوکیشن. تو ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی آگے آنا چاہیے. اور میں بار بار بول رہا ہوں، آج پھر 10 بار میں نے کہا آپ پیسوں کو بچائیے، آپ پیسوں کو شادیوں میں مت خرچ کیجیے. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. معذرت چاہوں گا ہمارے علاقے کے حافظ عزیز عالم دین مفتی زاہد صاحب قاسمی حافظ اللہ محترم جامعہ عمر فاروق بڑھوی وہ تشریف رکھتے ہیں. اور ہمارے اڑیسہ کے مشہور و معروف عالم دین مفتی سید نبیل ولی صاحب بڑھوی قاسمی حافظ اللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اتنے وقت کا بات کرو بھائی کہ اتنے وقت میں کیوں پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، مجلس سن کے جا رہے ہیں. بھائی جو آپ گاؤں کے لوگوں کو بٹھائیں اس طرح مزاج خراب ہوتا ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ آپ کا ادارہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس ادارے کے بلکہ اکثر اداروں میں یہ لاک ڈاؤن کورونا کی وجہ سے بہت متاثر رہا. 2 سال اس سال الحمدللہ 100 سے زائد طلبا دارالعلوم میں رہ رہے ہیں. باقی جتنی تعمیرات اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی ناقص ہے. تمام حضرات سے گزارش کروں گا اس ادارے کے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین اس کے بقیہ کاموں کو مکمل فرما دے. ابھی اس میں ماربل لگنا ہے، ٹائلس ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، وائرنگ ہے، باقی بہت سارا کام ہے. اور اسی طرح پلاسٹر کا بھی باہر کا کام چل رہا ہے. دعا فرمائیں. اور مدرسے کا 100 سے زیادہ بچوں کا 3 وقت کا کھانا اور 10 اسٹاف ہیں ان کی تنخواہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے نظر خیر سے پورا فرمائے. اب میں معذرت کے ساتھ ہمارے علاقے کے مفتی زاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے تشریف لائیں اور اپنی معلومات پیش فرمائیں. اس کے بعد مفتی عارف جمال صاحب قاسمی محتمل و بانی جامعہ منبع مدرسہ منبع دونوں وہ ایک ناصری پیش فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید نبیل ولی صاحب کا نکاح ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہو جائے گی، پھر کھانا ہونا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو بج چکے ہیں اور اعلان یہ ہے کہ 9:30 بجے اجلاس ختم ہوگا. اب تو حضرات ہم لوگ ہیں یہاں اور یہ بھی درخواست ہے کہ مختصر کیا جائے. تو 10 منٹ ہم لوگ بانٹنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق اللہ العظیم.
حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم حسینیہ کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس ہے ریاست اڑیسہ کے کریم علماء کرام یہاں موجود ہیں اور ٹارگیٹ علم اور تعلیم ہے۔ اسی ایک موضوع کو لے کر علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں اور آگے بھی گفتگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال ہو چکے تھے اور جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جہالت اور عروج پر، اور جہالت کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں نے جنم لے لیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاں زنا عام ہو چکا ہے، چوری عام ہو چکی ہے، ڈکیتی عام ہے، رات کو لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، غریب پر انصاف قائم کیا جاتا تھا، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ماحول تھا جو ناقابل بیان ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرعی طور پر نبی اور رسول بنایا اور آخری نبی اور رسول بنایا۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن جو رسول آپ کو بنایا وہ کن الفاظ کے ذریعے سے وحی الہی کی شروعات ہوتی ہے، وہ الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے۔ آپ یہ سوچیں کہ جہاں زنا عام ہے وہاں پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں چوری عام ہے وہاں پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں ظلم اور ناانصافیاں ہیں وہاں پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح کی بھی برائیاں ہوں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ سماج میں علم اور تعلیم کے سلسلے کو رواج دیا جائے اور لوگوں میں علم کو پھیلایا جائے۔ جب ہمارے اندر علم آئے گا، تعلیم آئے گی، ہم ایجوکیشن سے جڑ جائیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے۔ جب برائی کو برائی سمجھیں گے، جبھی جا کر بچنے کے لیے راستے تلاش کریں گے، اور جب برائی کو برائی نہیں جانیں گے تو اس کے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس كلهم هالكون
इल्ला अल-आलिमून। सारे इंसान नुकसान और तबाही में हैं, इल्म वाले बच जाएंगे। इल्म वाले को ये पता होता है कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है। रास्ते का इल्म वाले को होता है। इस बुनियाद पर हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इल्म लेकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो इल्म है जिससे अल्लाह की पहचान होती है, जिससे नबी की पहचान होती है, जिससे नबी के मकाम और मर्तबे के बारे में हमें इल्म होता है, जिससे हमें ये बात मालूम हो जाती है कि मेरे बाप माँ का हक मेरे ऊपर क्या है, समाज का हक मेरे ऊपर क्या है, सहाबा क्या है, औलिया किराम क्या है, इन उलमाए रब्बानीन की कद्र व मंज़िलत किस तरह करनी चाहिए, हमें उस इल्म से पता होता है जो इल्म अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए हैं। और ये इल्म मदारिस इस्लामिया में दिया जा रहा है, मकातिब कुरानिया में दिया जा रहा है। अंग्रेज एक पॉलिसी के तहत में आया है और पॉलिसी का जवाब इंफिरादियत नहीं है, पॉलिसी का जवाब पॉलिसी है। जब एक जमात और एक कौम मंसूबा बंदी के साथ मैदान में उतरती है तो आपको फाइट करने के लिए आपकी तकरीर काफी नहीं है, आपको फाइट करने के लिए आपका बाहर निकलना काफी नहीं है। फाइट करने के लिए आपकी पूरी टारगेट के साथ, मंसूबा बंदी के साथ और पूरी कामयाब पॉलिसी के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी का मुकाबला करेगी। वो जमाना गुजर गया और लड़ते लड़ते हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क को आजाद कराया। आज उसका एक ऐसा दिन है जो हम सारे इंसान, इस मुल्क के रहने वाले सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जो मुल्क के हालात है, इन हालात में भी ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि हम अपने अल्लाह को भूल जाएं, हम अपने नबी को भूल जाएं, हमारे घरों के अंदर वो कल्चर न आए जो कल्चर अल्लाह के रसूल लेकर के तशरीफ लाए हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज में वो तहजीब न आए जो तहजीब सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए। हमारे सामने गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आ रही है। क्या पॉलिसी है? NEP, गौर से सुनिए आप जरा, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी लेकर के मौजूदा गवर्नमेंट आ रही है हमारे सामने तालीमी पॉलिसी के उन्वान पर। जब ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने तैयार किया ना, तो ये ड्राफ्ट बहुत सी यूनिवर्सिटियों को भी भेजा गया है। और मैं आपको आगे ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP के ड्राफ्ट दारुल देवबंद को भी भेजा है और दारुल देवबंद ने उसका जवाब भी लिखा है। और जो उसमें अपनी राय समझ में आई है, दारुल देवबंद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को NEP के बारे में अपना रुझान भी दिया, अनुभव भी दिया है। अब इसके अंदर क्या बातें हैं? बातें बहुत अच्छी अच्छी है, बातें अच्छी है कि कोई भी इस मुल्क में रहने वाला तालीम से आजाद नहीं होना चाहिए, उसे तालीम से जोड़ना है। कम से कम 12वीं तक हर मुल्क में रहने वाला 12वीं पास होना चाहिए, ताकि हमारे पासपोर्ट में ये न लिखा जाए कि ये जाहिल है। हमारा पासपोर्ट जब तैयार हो तो उसमें इस मुल्क का नाम रोशन होगा कि ये कम से कम +2 तक पढ़ा हुआ है। तो बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, लेकिन जब आप उसके प्रियम्बल में जाएंगे, उसकी तमहीद का मुताला करेंगे, तो हमें आपको समझना चाहिए कि वहां ये बात लिखी हुई है कि हमें इस मुल्क की जो असली कल्चर है उस कल्चर को आम करना चाहिए। और इस मुल्क की असली कल्चर क्या है? वो सनातन कल्चर, यानी एक खूबसूरत लिबासे में
آپ کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کل سے ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول سے آ رہے ہیں تو باپ اور ماں کو ضد کر رہے ہیں کہ ڈیڈی آج میرا برتھ ڈے ہے، مجھے کیک لا کر دیجیے، مجھے کیک کاٹنا ہے۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک لفظ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ کلچر کرسچن کلچر ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کر کے اسی اسکول کے چہار دیواری کے اندر سے، اسی اسکول کے دیواروں کا کلاس روم کے اندر سے یہ کلچر بھی آنے والا ہے کہ ہندوانہ کلچر ہمارے گھروں میں آئے گا۔ اب اس پالیسی کا جواب کیا ہے؟ اس پالیسی کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں قرآن و سنت کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، مسائل کے ضروری مسائل کی تعلیم، سنتوں کی تعلیم، میرے دوستو اگر ان بچوں کو دیا جائے گا، ہم اسکول بھیجیں گے، وہاں کے غلط اثرات سے ہمارے بچے متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم اسکول سے آزاد نہیں ہیں، ہمیں بھیجنا ہے، ہمیں تعلیم دینا ہے، لیکن ہمیں ان بچوں کے ایمان کو بچانا بھی ہے، تو تعلیم بھی دینی ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے۔ تو اس پالیسی کا جواب یہ ہے کہ مکاتب قرآنیہ کو آباد کیا جائے اور مکاتب قرآنیہ کے منظم ماحول میں ہمارے بچے جو عقائد سیکھیں گے، شریعت جانیں گے، مسائل جانیں گے، قرآن سنت کو جانیں گے، ہمارے بچے اسکول کے سناتن تہذیب سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو مکاتب قرآنیہ سے اور مدارس قرآن مدارس اسلامیہ سے آباد کریں۔ مکاتب قرآنیہ جو مکتب کی تعلیم ہوتی ہے نا، قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بار بار دفعہ لفظ یاد کیجیے گا، بار بار دفعہ مکاتب قرآنیہ کی اہمیت مدارس کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں آنے والے مسلمانوں کا 1% طبقہ ہے اور 99% مسلمانوں کا طبقہ مدارس نہیں آ رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے۔ تو اسکول جانے والوں کو قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اور وہ 99% طبقہ ہے، اور دین ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے مدارس میں آنے والے بچے ہوں ان کے لیے بھی دین ضروری ہے، اسکول جانے والے بچے ہوں ان کے لیے بھی دین ضروری ہے۔ تو یہاں 1% ہمارے پاس ہے، 24 گھنٹہ رات و دن وہ ہماری تربیت لے رہا ہے۔ اس 1% طبقہ سے تو ہم مطمئن ہے، لیکن 99% طبقہ بہت بہت طبقہ ہے، ہمیں اس طبقے تک بھی دین پہنچانا ہے۔ تو کس راستے سے پہنچے؟ مکاتب قرآنیہ کا راستے۔ اس بنیاد پر مکتب کی تعلیم کی اہمیت کہیں کہیں پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ جو مدارس اسلامیہ میں قرآن کی گہرائی میں اتر کر اللہ کے منشے کو سمجھ رہے ہیں اور قرآن اور سنت کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج اور پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ میں آ کر کے قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ قوم کا ایک چھوٹا طبقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جماعت ہوگی جو مدارس میں پڑھے گی اور آ کر کے قوم کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، یہ جماعت ہوگی۔ یہ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ایک جماعت ہوگی۔ جو سارے لوگ نہیں ہیں ان تک ہم کو دین پہنچانا ہے، یہ جماعت سے تو مطمئن ہے، لیکن وہ جو 99% طبقہ نہیں آ رہا ہے میرے دوستو اس تک دین پہنچانا ہے۔ آپ ڈاکٹر راجندر سچر کی رپورٹ دیکھ لیجئے جو یو پی اے گورنمنٹ کے ٹائم میں ڈاکٹر راجندر سچر نے تیار کیا ہے سچر کمیٹی کے رپورٹ کے اعتبار سے کہ 3.5% مسلمانوں کے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر راجندر سچر کو یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے اور مکتب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں کو ملایا ہے اور دونوں کو ملا کر کے رپورٹ تیار کی ہے کہ 3.5% مسلمانوں کے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں، یعنی مدرسے اور مکتب میں جا رہے ہیں۔ 96% طبقہ مسلمانوں کا آج بھی قرآن و سنت سے دور ہے، اور مالی اعتبار سے اکنومیکل
डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने कहा मुसलमानों की दुनियावी तालीम का हाल और मुसलमानों की माशी हाल का हाल ये है कि ये दलित से ज्यादा बदतर है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है जो यूपीए गवर्नमेंट ने तैयार किया था। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को नंबर 1 आप कुरान की तालीम से आशना कीजिए, बच्चियों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए, मुनज़्ज़म निज़ाम बनाइए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तबका स्कूल जा रहा है, हमें स्कूल जाने से मना नहीं है। हम तो अलाल ये कहते हैं कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दो। आज हमारे मुल्क को बेहतरीन इंजीनियर की भी जरूरत है। हिंदुस्तान के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी के साथ हाफ फीस के साथ मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर कायम कर रखे हैं। जेई का भी कोचिंग करा रहे हैं, नीट का भी कोचिंग करा रहे हैं, यूपीएससी का भी कोचिंग करा रहे हैं और करा करके मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं सारे मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूंगा इस लफ्ज के साथ कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा अगर मुसलमान हार गया है तो आप मुसलमान उलमा इकराम के दिलो जिगर से पूछो इस हारने की वजह ये है हमारा कोई बड़ा वकील नहीं है। आज अगर हमारा कोई बहुत बड़ा वकील रहता और एक नहीं हजारों की तादाद में, मेरे दोस्तों याद रखिएगा समाज को 10,000 वकील की जरूरत है। आपके समाज में एक लॉयर पैदा होता है, इससे समाज की जरूरत पूरी नहीं होगी। एक टारगेट लेकर के हमको वकील तैयार करना होगा, एक टारगेट लेकर के हमको एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करना होगा, एक टारगेट लेकर के हमको मुस्लिम लेडियों को गायनिक स्पेशलिस्ट बनाना होगा, जल्दी जाकर के हमारी कौम आगे जा सकती है। इसलिए हम इस तारीख के बारे में भी मुसलमानों से कहेंगे अपने पैसों को शादियों में खर्च न करो मुसलमानों। आज मुसलमान का हाल ये है कि अकीके में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, ये उलमा ये मुफ्तियां के यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लो अकीके की शरई हैसियत क्या है। अकीके की शरई हैसियत ये है एक मुस्तहब अमल। हमने सारे फराइज को छोड़ रखा है, सारे वाजिबात को छोड़ रखा है, एक मुस्तहब अमल के लिए हमें 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, इस दुनिया में मेरी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। आज शादियों का हाल क्या है? हमारी शादियों में न जाने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कितने आइटम्स बना रहे हैं। अगर मेरा समाज में बसने वाला कोई अब्दुल्ला 10 आइटम बनाया है तो मैं अपनी बेटियों की शादी में 15 आइटम बनाऊंगा। मेरे बड़ी में शादी हुई है तो उस कार में मेनू चार्ट लिखा हुआ है, आइटम क्या क्या मिलेंगे आपको खाने में। बताइए, अगर मुसलमानों का ये हाल होगा हमारी कौम जाहिल रहेगी या नहीं रहेगी? हम कहते हैं ऐ मुसलमानों, आप शादियों के बेटा खर्चों को बचाओ और बचा करके अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाओ। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ और बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराओ। इस सीट पे बच्चों को बिठाओ जिस सीट पे मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा सेट होता है। अगर हमने अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, आईआरएस बना दिया, आईएफएस बना दिया तो मुसलमानों इस सीट को हमारे बच्चे हासिल करेंगे जिस सीट पर बैठ करके हमारे खिलाफ एजेंडा सेट होता है। क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? हम शादियों में खर्च करें, कोई हमारी तारीफ करने वाला नहीं है। न इससे जिस्म का फायदा है, न जान का फायदा है, न ईमान का फायदा है। मेरे दोस्तों, शादियों को मुख्तसर करो और पैसों को बचाओ और इन पैसों को बच्चों की तालीम और तरबियत में खर्च करो। अगर तालीम दी है तो मेरे दोस्तों हमारा समाज रोशन हो जाएगा। हमारा खाना खा हमारी कोई तारीफ करने वाला नहीं। यही बच्चा अगर आपने शादियों के पैसों को बचाया है तो समाज के लोग कहेंगे बहुत वकील है, कहेंगे सुन लीजिए। लेकिन यही बच्चा कल डॉक्टर बन के आ जाएगा मेरे दोस्तों तो पूरे समाज का नाम रोशन करेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। और इस मुल्क के डेवलपमेंट के लिए कल जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, आज भी आइंदा भी इस मुल्क के डेवलपमेंट के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो मुल्क का नाम रोशन करेगा, बाप का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चों को तालीम में लगाओ और पैसों को बेजा खर्च मत करें। बहुत पैसा आप बताइए इसी चौड़ीपुर में कितनी शादियां आज तक हुई हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बताओ क्या 10 डॉक्टर नहीं हो जाते? अभी तक हो जाते कि नहीं हो जाते?
अगर हम सारे पैसों को लगा के, हमारे अंदर एक कमी ये है, हमने अपने बच्चों को बच्चा समझा है और कौम के बच्चों को बच्चा नहीं समझा है। ऐ मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस तालीम का अंदाजा लगाओ। ईद का दिन है, अल्लाह के रसूल खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहे हैं, रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों के बारे में पूछा, ये कौन है? बताया ये फुला है, गरीब है, इनके पास नए कपड़े नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास इन बच्चों को भेजा, इनको नहलाया गया, इनको बेहतर कपड़े सामान से ला करके पहनाया गया। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में बच्चा लेकर मिंबर पर खड़े होकर फरमाते हैं, इस सर पे हाथ रखकर कोई यतीम के सर पे इस तरह हाथ रखेगा तो जितने पाल होंगे इतनी नेकियां मिलेंगी। ये मेरे नबी की तालीम। हमने अपने बच्चों को तो बच्चा समझा है, मेरे दोस्तों, कौम के बच्चों को बच्चा नहीं समझा है। जिस तरह हम अपने बच्चों को बच्चा समझ रहे हैं, इसी तरह कौम के बच्चों को भी हमें बच्चा समझना चाहिए और हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो गुलामी की जंजीरों में जाने वाले हैं, हमारा नाम और निशान मिट जाएगा, हमारा दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, अगर हमने कौम के बच्चों को बच्चा नहीं समझा है, समाज में घूमिए, देखिए कौन गरीब है। गरीब में भी, गुर्बत घराने में भी बहुत से बच्चे टैलेंट हैं, उनके टैलेंट से फायदा उठाइए, उनको लीजिए, बड़े से बड़े मदरसे में अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा स्कूल में दाखिला कराइए और टारगेट दीजिए। अल्लाह ताला इसको बड़ा सही बनाया है, ये आईएएस जरूर बन जाएगी। फर्ज कीजिए, अल्लाह जरूर बना देगा इंशाअल्लाह। हमें मुसलमानों को इस तरफ आना चाहिए। और मेरा सवाल, मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों को अपना टाइम को जाया नहीं करना चाहिए। 13 सवालात हम पढ़े हैं। शहाब पैदल हज के लिए जा रहा है, सारे लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वो भी तस्करा कर रहे हैं। उसे पैदल जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? फला मुफ्ती ने कहा नहीं जायज है, फला ने कहा जायज है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो बेचारा पैदल जा रहा है, हम उसकी कीमत करके गुनाह कमा रहे हैं। ऐ लोगों, इससे पॉजिटिव पैगाम लेना चाहिए, हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए कि ऐ चौड़े बोलने नौजवानों, शहाब सारी दुनिया में पैगाम दे रहा है, वो पैदल यहाँ से मक्का मुकर्रमा जा सकता है। तुम कैरम बोर्ड खेल रहे हो, मस्जिद नहीं जा सकते हो, पैगाम दे रहा है। हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, शादियों के खर्चों को बचाओ और बच्चों की तालीम और तरबियत में लगाओ। मदारिस इस्लामिया को आबाद करो, मकातब कुरानिया को आबाद करो। और जो लोग इस पूरी लाइन में जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे पता है क्या है, या तो 10 से पहले देख हो जा रहे हैं या 10th में देख हो जा रहे हैं। बहुत ज्यादा छलांग लगाया तो +2 तक गया और +2 के बाद देख हो गए। हायर में कितने बच्चे हमारे जा रहे हैं? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अगर समाज में जरूरत है, गरीब बच्चा है, हायर एजुकेशन पैसे की बुनियाद पर पे कर रहा है, तो समाज की जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे ना, इख्तिलाफात मिटा करके मोहब्बतों का गुलदस्ता सजाइए। आज से पहले लाखों लोगों ने इख्तिलाफ किया है, जमीन पे चले गए, हम भी इख्तिलाफ करेंगे, हम भी जमीन पे चले जाएंगे। इख्तिलाफ करने वाला कोई बाकी नहीं रहा है, ऐसे भी कोई बाकी नहीं रहेगा। अच्छे काम करेंगे, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। इसीलिए जो मदरसे की जरूरियात है, आप इन जरूरियात को पूरा कीजिए। जो मदरसे की जरूरियात है ना, आप इन जरूरियात को पूरा कीजिए। हम ही करेंगे, कौम का इदारा है और कौम ही इसकी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह, कौम इस पर 4 चांद लगाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा इस इदारे की जो भी खारजी और जो भी दाखिली जरूरियात है और जो भी तामीरी एतबार से जरूरियात है, हम आए पर्दे में इन जरूरियात को पूछिए, अपनी तरफ से अपने माल को लगाएं और बेजा खर्च से बचिए, पैसों को बचाइए। बहुत डीप में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, आप पैसों को बचाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस कौम को आगे लेके जाना है ना, तो आप पैसों को बचाइए और तालीम में खर्च कीजिए, एजुकेशन में खर्च कीजिए। जहां भी तालीम के इदारे हैं, उस इदारे को परवान चढ़ा दीजिए। आज मुसलमान तालीमी इदारे में पैसा खर्च करने बहुत पीछे है। मुसलमान कहाँ बनाएगा? बीवी को खुश करने के लिए ताजमहल बना देगा, तालीमी इदारा नहीं खोलेगा। इसराइल ने तालीमी इदारा खोला, मेरे दोस्तों, सारी दुनिया पर दिल वास्ता या दिला वास्ता इसराइल हुक्मरानी कर रहा है। ड्यू एजुकेशन,
तो हमें तालीम के मैदान में भी आगे आना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज फिर 10 बार मैंने कहा, आप पैसों को बचाइए, आप पैसों को शादियों में मत खर्च कीजिए, आप पैसों को अकीका में मत खर्च कीजिए, आप पैसों को देजा दिखावे में मत खर्च कीजिए, पैसों को तालीम में लगाइए, इल्म में लगाइए, कौम की डेवलपमेंट में लगाइए, कौम की तालीम और तरक्की में लगाइए। चंद सालों के बाद आप देखिएगा हमारी कौम की हैसियत क्या बनेगी। आने वाले हालात और खराब हालात आने वाले हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आइंदा हालात बेहतर हो जाएंगे, आने वाले हालात और खराब होने वाले हैं, आने वाले हालात और ज्यादा चैलेंजों से भरे हुए हैं। हमें उन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयार क्या है? हम किसी बम बारूद का वास्ता नहीं लेते हैं। हम अगर एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, ये एजुकेशन दुनिया के हर मैदान में फाइट करेगा और हमें आगे लेकर के इंशाअल्लाह जाएगा। करेंगे? अल्लाह पाक मन की तौफीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।